Students, this is class 8th SST Geography chapter 2 Earth's Resources, and this is the third part of this video. In second part we had studied about land and how can we conserve land. Now in this part we will learn about what is soil. Soil is the loose, grainy upper layer of the land's surface. Soil is the loose, grainy upper layer of the land's surface where vegetation grows. Soil वो ग्रेनी लेयर है लैंड की सरफेस का जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो की जाती है, मीन्स जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, वेजिटेशन की जाती है. इट कंसिस्ट of a mix of organic material, that is decayed plants and animals, and broken bits of rocks and minerals. ये किस चीज़ का मिक्सर है? सॉइल एक ऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिकेड प्लांट्स का मिक्सचर होता है जिसमें एनिमल्स एंड ब्रोकन बिट्स ऑफ रॉक्स के कुछ ब्रोकन बिट्स होते हैं, टूटे हुए टुकड़े होते हैं, एंड मिनरल्स और कुछ खनिज होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं. दीज लिटिल बिट्स ऑफ रॉक आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग. ये जो जो बिट्स होते हैं रॉक के, ये किन से क्रिएट होते हैं, किन से फॉर्म हुए होते हैं? वेदरिंग से. Weathering means you can say to change or make something change in appearance because of the effect of the sun, air or wind. हिंदी में बोलेंगे धूप हवा के कारण जो किसी चीज़ की फेस को चेंज कर देना या किसी का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें चेंज आ जाना इज कॉल्ड वेदरिंग. In next simple ways we can say weathering is the breaking down of rock, soils and minerals as well as wood and etc. Now next heading is how is soil formed. Soil कैसे form होती है, कैसे बनती है? Soil takes a very long time to form. Soil को form होने में बहुत time लगता है. In fact, in an inch of soil could टेक अप टू 1000 years टू फॉर्म. 1 इंच सॉइल क्रिएट होने में, फॉर्म होने में लगभग 1000 years लग जाते हैं. लेट्स look at the layers of the soil. Look at this picture. These are the layers of the soil. The first layer you are seeing here, topsoil with organic matter. This is topsoil with organic matter, and this layer is second layer, subsoil. This layer is called subsoil. Weathered pattern rock. This soil part is weathered parent rock, and this part is bedrock or parent rock. This is called parent rock, bedrock. Now we are going to study about what are the factors that affect soil in formation. What are the factors that affect soil formation? Soil के formation में जो factors affect करते हैं वो factors कौन कौन से हैं? There are 5 major factors that affect the formation of soil. 5 major factors हैं जो soil की formation को affect करते हैं. Look at the diagram. This is the diagram. First effect is the first factor is parent rock. This depends on how the rock in the region was formed by glaciers, volcanoes. पेरेंट रॉक सॉइल की फॉर्मेशन को इस तरह से अफेक्ट करता है. ये फैक्टर ऐसे अफेक्ट करता है कि डिपेंड करता है सॉइल वहाँ की वैसी होगी, वो डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पे कि पेरेंट रॉक ग्लेशियर्स है या वॉल्केनोज से क्रिएट हुई है. तो इससे डिपेंड करेगा कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी, कि पेरेंट रॉक कैसी होगी, उसी टाइप की वहाँ की सॉइल होगी. तो ये एक फैक्टर हो गया सॉइल की फॉर्मेशन का जो अफेक्ट डालते हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज़ क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसे सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है? प्रिसिपिटेशन, हीट, फ्रस्ट कॉज वेदरिंग विच इन turn affects the composition of the soil and the humus in it.
क्लाइमेट हमारी सोइल को फॉर्म होने में अफेक्ट करता है। जैसे कि वहाँ किसी भी जगह की सोइल वो उसके अकॉर्डिंग होगी, जैसे वहाँ का क्लाइमेट होगा, वहाँ की प्रेसिपिटेशन मीन्स एक्स्ट्रा, वहाँ की रेन कैसी है, हैवी रेन है या स्लो रेन है, वहाँ की हीट कैसी है, वहाँ फ्रस्ट भी कभी कभी, वेदरिंग भी कभी कभी वहाँ की सोइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। First means you can say little layer, just a minute. First you can say first is a thin layer of ice on a solid surface. किसी surface पे ice की thin layer is called frost, cause weathering, which in turn affects the composition of the soil and the humus in it. वो वहाँ की weathering और फर्स्ट ये सभी चीज़ें सॉइल के कंपोजिशन को अफेक्ट करती हैं। उसकी कंपोजिशन वहाँ की उसी टाइप की होगी जैसा वहाँ का क्लाइमेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की सॉइल की कंपोजिशन होगी। उसमें ह्यूमस, वहाँ की जैसी ह्यूमस होगी उसी के अकॉर्डिंग सॉइल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज़ फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। All these contribute to the formation of the organic humus layer. ये सारी चीज़ें फ्लोरा, फौना, फ्लोरा मीन्स plants and all, fauna means cattle or wildlife and all the animals are related to fauna, and microorganism means microorganism you all know very well. Microorganisms are very small living things that you can only see with a special piece of equipment or microscopes, just like means हिंदी में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक ह्यूमस लेयर. जो ऑर्गेनिक ह्यूमस लेयर होती है उनको ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. इन सभी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ की सॉइल फॉर्मेशन में. जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस विच कैन स्पीड अप और स्लो डाउन सॉइल फॉर्मेशन. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस लेकर के आते हैं सॉइल में, तो वो डिपेंड करता है उनके केमिकल रिएक्शंस पे ही डिपेंड करेगा कि सॉइल की फॉर्मेशन स्पीड में होनी है या उसकी स्पीड स्लो होनी है. नेक्स्ट फैक्टर इज़ लैंड फॉर्म्स. Land forms, altitude and steepness of the surface affect soil formation. जो किसी भी लैंड सरफेस का लैंड फॉर्म जस्ट लाइक स्टीपनेस मीन्स स्लोप्स टाइप्स या उसकी बनावट पे डिपेंड करेगा, सरफेस की बनावट पे डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसे फॉर्म होगी, कैसे उसकी फॉर्मेशन होगी. इरोजन विच डिपेंड्स ऑन इंक्लिनेशन इज़ एन एग्जाम्पल. जैसे इसका एक एग्जांपल इंक्लिनेशन पे है. इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है मीन्स वहाँ की लैंड फॉर्म, वहाँ की सरफेस, लैंड की बनावट, उसका स्लोपनेस या स्टीपनेस, ये सारी चीज़ें और इरोज़न, सॉइल का इरोज़न, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी सॉइल फॉर्मेशन में. सो लैंड फॉर्म्स इज़ also a factor that affects soil formation. Next factor is time. Over time, vegetation and climate act on parent material and landform. This affect the thickness of the soil. जो वेजिटेशन का एक ओवर टाइम हो जाता है, ज़्यादा टाइम, या किसी क्लाइमेट का एक्ट जो होता है नॉन पेरेंट मटेरियल, जो लैंड फॉर्म की पेरेंट मटेरियल होता है, उस पर अगर क्लाइमेट का ज़्यादा अफेक्ट हो गया, ओवर टाइम हो गया, या किसी वेजिटेशन को ओवर टाइम कर दिया गया, तो ये भी इफ़ेक्ट डालता है वहाँ की सॉइल को फॉर्मेट, उसकी थिकनेस या उसकी थिननेस. इस बात पर डिपेंड करती है वहाँ की सॉइल पर, इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ के क्लाइमेट पर कैसे, वहाँ पे क्लाइमेट का टाइम कितना है, मीन्स कितना क्लाइमेट ने वहाँ पे अपना टाइम दिया है, या क्लाइमेट ने कैसे कैसे चेंजेस लाए हैं, या वेजिटेशन वहाँ पे ज़्यादा की गई या कम की गई. ये सारी चीज़ें. टाइम मीन्स इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट सॉइल इन फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज़ why is soil important? When you come back from a rough game of football, what is the first thing your mother says? आपकी मॉम पहले क्या कहती हैं कि चलिए आप अपने क्लॉथ्स चेंज करिए, आपने बहुत सारी डर्ट लगा रखी. दैट्स what soil is to most people.
डर्ट मीन्स कई पीपल होते हैं जो डर्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको डर्ट पसंद नहीं है, उसको जल्दी से हटाते हैं, साफ़ करते धुलते हैं। बट दिस डर्ट टू यूज़ प्रॉपर वर्ड सॉइल, मतलब अगर डर्ट जो ये है जिसको हम लोग सॉइल कहते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ को अर्थ पे सपोर्ट देने के लिए। फर्स्ट सपोर्ट है प्लांट्स के लिए कैसे सॉइल सपोर्ट करती है। प्लांट्स इन ऑर्डर टू ग्रो, प्लांट्स को ऑर्डर में ग्रो करने के लिए यूज़ सॉइल नॉट ओनली फॉर न्यूट्रिएंट्स, सॉइल का यूज़ सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं होता है, बट ऑल्सो टू एंकर देमसेल्व्स इन टू द ग्राउंड यूजिंग दियर रूट्स। उनकी जहाँ पे रूट्स होती प्लांट्स की ग्राउंड के अंदर, वो रूट्स को एक साथ रखने के लिए, या प्लांट्स को एक एंकर का, प्लांट्स के लिए एक एंकर का काम करती है सॉइल अगर नहीं होगी तो प्लांट्स सीधे कैसे स्टैंड रहेंगे। तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट थिंग इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉइल इज़ होम टू मेनी एनिमल्स, फंगी, वॉर्म्स एंड बैक्टीरिया। कई सारे जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका होम कहाँ पे है, वो सॉइल में ही तो रहते हैं। सॉइल नहीं होगी तो कहाँ रहेंगे, बहुत सारी फंगी, वॉर्म्स, ये सारी बैक्टीरिया एंड ऑल, ये सॉइल में रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल्स, न्यूट्रिएंट्स जो साइकिल है वो भी एक सॉइल के थ्रू क्रिएट होती है। सॉइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग द कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल्स। जो सॉइल है उसके थ्रू ही न्यूट्रिएंट साइकिल्स बनती है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है वाटर के लिए सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट। सॉइल हेल्प्स टू फिल्टर एंड क्लीन द वाटर द सीप थ्रू आफ्टर प्रेसिपिटेशन। जैसे बहुत सारी प्रेसिपिटेशन हुई, हैवी रेनफॉल हुई, तो उसमें पानी फ़िल्टर होकर के, सॉइल से फ़िल्टर होकर के ग्राउंड वाटर में जाता है। तो एक वाटर को फ़िल्टर करने का वर्क भी सॉइल करती है। सो दैट वी कैन से सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ ऑन अर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।